through each one of us. And it is He that gives us the words, especially as we think about God's word. सभी लोगों को नमस्कार और ये सुबह के समय में ऐसा एक वक्त मिला है, इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। और जो बात आप लोगों ने कही है वो मैं पाने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। I do feel a little disadvantaged in speaking. One, because I don't know Hindi. I mainly know English, so I have to give credit to our translators, especially Brother Sabir, who has been translating the most for us. I don't know what he's translating, so I trust that everything is good, and I'm glad that you are blessed, and we're learning together through this process. And so thank you for the opportunity, first of all, to do this. और मैं एक और बार जो है भाई शिबिर के लिए भी धन्यवादी हूँ कि मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मुझे हिंदी नहीं आता, मुझे इंग्लिश आती है। और भाई लोगों ने भाई शिबिर ने कैसा ट्रांसलेशन किया होगा और कैसे आप लोगों ने समझे होंगे, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जो ट्रांसलेशन करते हैं वो अच्छा ही करते होंगे। I am always looking forward to that moment that we read in the book of Revelation, where it says that there are going to be people from every tribe, every tongue, every language group, and we're all going to say how great our God is. And so that is going to be a glorious moment where all languages are going to be praising God. और जैसे कि प्रकाशित वाक्य में हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा एक समय होने वाली है, आने वाला समय में ऐसा एक वक्त होगा जिस समय सभी जो है वर्ग के लोग, सभी भाषावादी, सब के सब मिल करके परमेश्वर की प्रशंसा करने वाले हैं। Now, when we go to the book of Psalms, it is a book that is one very challenging because we face questions in life that is reflected in the book of Psalms. और जैसे कि हम लोग जो है भजन संगीता को देख रहे हैं और देखते हैं कि उस भजन संगीता में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, और वो सवाल और वो जवाब भजन संगीता में एक संगीत के रूप में आप और मैं देख सकते हैं। And for us this morning, the question that I want us to consider is, how do I respond when someone brings a false accusation against me, or if that leads to further persecution in my life? और आज जो भजन में हम लोग इस तरीके से देखने वाले हैं कि कोई जो है मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाता है, तो ऐसे परिस्थिति में मैं किस तरीके से प्रतिक्रिया दूंगा। और जो है ये भी है कि ऐसे झूठा आरोप और ऐसे ही गलत तरीका का प्रत्यारोप जब होता है, तो वो किस तरीके से जो है एक ताड़ना की ओर ले जाता है। When we look at Psalm 7, which is where we're at today, it's easy for us to claim this first verse, "O Lord my God, in you I put my trust, save me from all those who persecute me and deliver me." But sometimes it's hard to really believe it because somebody else is falsely making accusations against me, and it leads to much harder persecution. And we may ask the question, Lord, why? Why not stop that false accusation? और जैसे कि हम लोग भजन संगीता उसका 7वां अध्याय पहला पद में इस तरीके से देखते हैं, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वाले से मुझे बचा और छुटकारा दे। हमारे जीवन में हमारे मन में ऐसे सवाल आते हैं कि जो है परमेश्वर ऐसे हमारे सताने वाले जो हैं, हमारे पीछे जो है ताड़ना देने वाले हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर पहले से ही हमें क्यों नहीं छुड़ाता। Now, at the very beginning of the psalm, I mentioned to you that there are certain psalms that have a title that is part of the psalm. And this psalm also has a title, and it gives a small glimpse to the context
of why David wrote the psalm. In the title, we read that a man by the name of Cush, a Benjamite, said something. And based on what he said, David is writing in response to the psalm. और जैसे कि बहुत सारे ऐसे भजन संगीता में उसकी जो है शिरोनाम है, उसका विषय वस्तु है, वैसे ही 7वां अध्याय को यदि देखा जाए तो एक व्यक्ति कुश करके एक व्यक्ति है जो बिन्यामीन गोत्र से हैं। कुछ ऐसी बातों को उसने कहा है और उन सब बातों को स्मरण करते हुए दाऊद ये जो भजन को, ये जो गीत को वो अपने भजन में बताते हैं कि कुश ने क्या-क्या कहा है। Now we have to keep in mind that David is the king of Israel at this time, and we don't exactly know the story in the Bible where we read a man by the name of Cush that says something against David, but we do know that Cush is a Benjamite from the same tribe as Saul, the previous king. So और when हम लोग David इस go सॉरी गो अहेड। ahead, brother. ओके, सो हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि जैसे कि दाऊद के ऊपर एक झूठा आरोप जो है कौन ना कुश के जरिए मिलता है। और कुश कौन है? एक बिन्यामीन गोत्र से है, जहां पर साउल जो पहले राजा था उस गोत्र से ही कुश जो है बिलोंग करता है। Now, obviously, Saul has family members and people that might still believe that Saul should still be the king and that he should be the one who's in control. And so when David takes over as king, you can imagine there are some people who will come and bring false things against David and thus put more trouble for David. और हम लोग देखते हैं कि साउल के भी बहुत सारे परिवार वाले होंगे। परिवार वाले तो हर समय जो है यही चाहेंगे, क्योंकि साउल एक राजा था और राजा जो है साउल ही बन करके रहे, उनका परिवार के सदस्य यही चाहेंगे। जब दाऊद जो है साउल के बदले राजा बन जाते हैं, दाऊद एक अलग गोत्र के हैं, तो परिवार वाले जरूर दाऊद के ऊपर झूठा आरोप भी वास्तव में ला सकते हैं। Now, with that context and background in mind, let's read Psalm 7, and we want to read verses 1 through 5, and we'll consider the accusation that is coming before David. और आइए हम लोग जो है भजन संहिता उसका 7वां अध्याय बा भजन उसका 7 अध्याय पहला पद से लेकर के 5वां पद तक देखेंगे, जहां पर कुश जो है बहुत सारे आरोप दाऊद के ऊपर लाते हैं। उस विषय को हम लोग देखेंगे। Shall we read and read? Yes, पढ़ना है। पढ़िए ब्रदर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह की नाई फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दे डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मैंने मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, वरन मैंने उसको जो आकरण मेरे बैरी था बचाया है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े, वरन मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। Now, first, let's consider what is the false accusation that is being brought forward regarding David. और सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि कौन सी ऐसी झूठी आरोप दाऊद के खिलाफ आया था। Now, you'll notice the response that David has by saying, "Oh Lord, if I have done this." So based on that, we know that he's claiming that somebody said something about me. If I have done this, and he gives a list of items that are being claimed against him in verse 3 and 4. और हम लोग क्या देख सकते हैं? सबसे पहले दाऊद जो है इस बात को लेकर के आते हैं, वो ये है कि उसके ऊपर जो झूठी आरोप लगी है, और दाऊद कहते हैं यदि मैंने ऐसा गलती की है, और वो गलती क्या क्या है, वो जो है कुछ ऐसे लिस्ट व कुछ ऐसे बिंदुओं
को जो है वो ले करके आते, कौन कौन सा ऐसी गलती वो की होगी? You can see the list here, and it says that he has done iniquity in his hands, or he has iniquity in his hands. And the person also said that David took revenge against someone who was at peace with him. And third accusation is that he plundered his enemy without cause. और हम लोग देखते हैं दाऊद किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। वो ये कहते हैं कि जो है उन्होंने अपने हाथों से कुछ ऐसी गलत काम को की है, या फिर जो है वो ये कहते हैं कि जो है शांति से जो है वो जो कोई व्यक्ति रहता था उनके ऊपर उन्होंने उनका बदला लिया है, और कोई बिना कारण से अपना दुश्मनों को उन्होंने लूटा है। Now, this is the same behavior as any politics that exists in any country in the world. Imagine what happens, I mean, in India or in the US or any other country, leaders are up there and someone says, that person is a bad person because he did all these things. It could be true, it could not be true. We don't know. And then that person will come back and say, well, no, I didn't do any of that. That person did such and such. And it goes back and forth between these leaders. And this happens in every country in all over the world. और यदि दुनिया में यदि देखें, राजनीतिक नेताओं को यदि देखें, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाता है, उसने ऐसा गलती किया, उसने ऐसा किया। तो ये हर देश में हम लोग देख सकते हैं, एक राजनेता दूसरे राजनेता के ऊपर या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाना लगाना जो है हम लोग इस दुनिया में देख सकते हैं। Sadly, sometimes the same thing happens in the church. बहुत दुख की बात है, ऐसे ही क्या होता है न कलीसिया में भी लोग आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। It happens in your life and my life. It could be in the church. It could be in our workplace. It could be in our community. I mean, I'm not in politics. I'm not a elected official in our country or anything, but there are accusations that come against me in our church sometimes, in our family, in our community. The question is, how do I respond? और हम लोग क्या देख सकते हैं, दुख की बात यह है कि ये सब घटनाएं हमारा कलीसिया में होता है, हमारे कर्म क्षेत्र में होता है, हमारा परिवार में होता है। और मैं कोई राजनेता नहीं हूं और मैं कोई चुना हुआ व्यक्ति सदस्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी हर परिवार में, हर कलीसिया में, हर कर्म क्षेत्र में ऐसा जो है क्या है ना, झूठा आरोप लगता है। सवाल यह है कि ऐसे झूठे आरोप यदि आपके और मेरे जीवन में लगता है तो हम कैसे और किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। Now, sometimes when false accusations come against us, we may be powerless. We may not have any power to do anything about it. However, there are some times where we want to and we are able to retaliate. And we want to keep in mind that David is a king and he has an army at his bidding. If he wanted to, he could go to Cush and just kill him. And और there हम will लोग be nothing that stops him from doing that as king. क्या देख सकते हैं, ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप को हम लोग देख सकते हैं। यदि दाऊद के ऊपर जब प्रत्यारोप आता है तो वो यदि चाहते तो जा करके कुछ को सीधी तरीके से उनको हत्या कर सकते हैं, लेकिन एक उनके पास वो सामर्थ्य है, उनके पास वो ताकत है, क्योंकि वो राजा है, वो चाहते तो जा करके वो मार सकते थे। But that is not how David responds. And we find that his response in the first portion of Psalm 7, where we see him, first of all, putting his trust in the Lord God. और दाऊद का प्रतिक्रिया ऐसा नहीं था वो जा करके किसी को मार डाले, लेकिन हम लोग देखते हैं उनका प्रतिक्रिया को देखते हैं, सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर के ऊपर उनका भरोसा है। Secondly, although he is going through some physical suffering in being persecuted, he says to the Lord God, I trust in you and I trust that you will save and deliver me. और देखिए
भले ही ऐसे ही शारीरिक तनाव और सतावटी के सामना करते हुए वो गुजर रहे हैं, लेकिन उनका प्रतिक्रिया को देखिए। वो इस तरीके से कहते हैं कि जो है मेरा भरोसा तुझी पर है और तू मुझे क्या करेगा, बचाएगा, तू मुझे उद्धार करेगा। ये भरोसा दाऊद का परमेश्वर के ऊपर है। Thirdly, you'll notice that he is not claiming that he is a perfect man. And thus, he goes to God and says, Lord, if I have done this, I believe I'm innocent. I did not do this as much as I know. But if I did do all these things, I'm willing to take the punishment that is being laid on me. Let the enemies come and crush me. I'm accountable for that sin if I have done this. He claims his innocence, though, however. और हम लोग क्या देख सकते हैं, तीसरी बात को देखते हैं, उनका प्रतिक्रिया को देखिए। प्रभु, मैं यदि ऐसा पाप किया है, वो कहते हैं कि मैं जो है इसमें इनोसेंट हूं, मैं जो है इसमें निर्दोष हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है। लेकिन फिर भी यदि मैंने कुछ गलती किया है, तो फिर जो गलतियों का जो है उसमें लिस्ट देते हैं। यदि मैंने गलती की है तो जो है वो दुश्मन लोग आ करके मुझे मारे और जो है मुझे उसके लिए मुझे दंड दे करके जो है वो इस बात को वो बताते हैं। Now, David is claiming that he's innocent. He didn't do this. And he said, I'm willing to take the punishment. However, if he did not do this, how should David respond? और आप देखिए, दाऊद तो इस बात को तो कहते तो हैं, मैंने ये गलती की नहीं है, मैं निर्दोष हूं। लेकिन वो कहते हैं कि वो मैं यदि गलत नहीं हूं, लेकिन फिर भी यदि गलती की है तो मैं इस दंड भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप देखिए, दाऊद यदि बिल्कुल भी गलती नहीं किया है, तो दाऊद का प्रतिक्रिया को देखिए। And that is what the remainder of the psalm is talking about. He goes to God and says, if I didn't do this, God, I still put my trust in you. I am not going to take my own vengeance. Instead, I'm going to trust in the God who is a just judge. ओ, अब देखिए दाऊद का प्रतिक्रिया को देखिए, किस तरीके से वो प्रतिक्रिया देते हैं। वो प्रतिक्रिया ये है मेरे प्यारो कि प्रभु, मैंने ये गलती तो नहीं की है, लेकिन लोग यदि मेरे को आकर के कोई सताता है, कोई परेशान करता है, कोई मुझे जो है ताड़ना देता है, फिर भी प्रभु मैं जो है उनका बदला नहीं लेने वाला, मैं बिल्कुल भी बदला नहीं लूंगा। और वो कहते हैं, प्रभु आप ही सच्चे न्यायी हैं, मेरा भरोसा आपके ऊपर है करके दाऊद कहते हैं। Let's take a moment and read verse 6 through 17 to understand how David is asking God to respond in this situation. और आप आइए हम लोग जो है 6वां पद से लेकर के 17वां पद तक हम लोग पढ़ लेते हैं कि दाऊद परमेश्वर से किस तरीके से वो कहते हैं और किस तरीके का प्रतिक्रिया वो देते हैं। हे यहोवा, क्रोध करके उठ, मेरे क्रोध भरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा तो दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर है और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थान पर लौट जा। यहोवा समाज समाज का न्याय करता है। यहोवा मेरे अधर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और धर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान कर चुका है और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही हैं। उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ उत्पन्न हुआ। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया है और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आग ही गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा
और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। हे यहोवा के धर्म के अनुसार, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। Now, from this, we can look at many different claims that David makes, but there are four basic claims that he goes to God with. और हम लोग क्या देख सकते हैं इस अध्याय को, इन वचनों को जो हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे दावा जो दाऊद के द्वारा किया हुआ उस बात को देखते हैं, लेकिन मुख्यतः चार ऐसी दावा परमेश्वर के सामने दाऊद करते हैं। He first of all claims that he is innocent with regard to the accusation that Cush has brought forward regarding him. और सबसे पहला जो है दावा इस तरीके से करते हैं कि कुश ने जो आरोप दाऊद के ऊपर लाया है उस आरोप से वो जो है निर्दोष है, उसने कुछ गलती नहीं की है। We want to be careful. David is not going to God and saying that he has never sinned and that he's a perfect man. He's going to God with one specific scenario in going to him and saying, God, if I have done this, I'm willing to take the punishment. But in this case, I am an innocent in the accusation that is brought forward. और आप देखिए दाऊद का प्रतिक्रिया को देखिए, दाऊद किस तरीके से कहते हैं। वो कहते हैं कि वो ये नहीं कहते कि मैं जो है कभी मेरे जीवन में पाप नहीं किया हूं। वो एक व्यक्ति व एक विषय को लेकर के जाते हैं, जो कुश ने जो आरोप लगाया है वो आरोप में वो निर्दोष है, इस बात को एक जो है पर्टिकुलर केस को लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि मैंने जो कुश ने आरोप लगाया है इस आरोप में मैं निर्दोष हूं करके परमेश्वर के सामने अपनी बातों को दाऊद रखते हैं। And although he claims innocence in this case, ultimately he is depending on the righteousness of God himself. और जब जो है अपने निर्दोष को तो वो परमेश्वर के सामने साबित तो कर रहे हैं, लेकिन जो है वो क्या करते हैं ना, पूरा के पूरा भरोसा, पूरा के पूरा विश्वास परमेश्वर की धार्मिकता के ऊपर है। And because he's claiming on the or depending on the righteousness of God, he is trusting in the God who is just and will do what is the righteous thing to do. और क्या हम लोग देखते हैं, जब बस संपूर्ण रीति से परमेश्वर की उस धार्मिकता के ऊपर वो जो है विश्वास तो करते हैं, उनका भरोसा तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो है परमेश्वर एक जो है धर्मी, एक सच्चे न्यायी है, परमेश्वर के न्याय के ऊपर भी दाऊद का भरोसा है। Ultimately, David is claiming the promise that's given in Deuteronomy chapter 32 and 35, in which God had instructed the children of Israel, vengeance is mine and recompense. The evil people's foot will slip in at the right time, in due time, and their calamities at hand. But ultimately, it is not you, David, who should take vengeance. It is I who will take vengeance. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो है दाऊद इस बात को, इस वचन को वो स्मरण करते हैं। वो क्या स्मरण करते हैं ना, व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय और जो है 35वां आयत को वो स्मरण करते हैं। क्या लिखा गया है वहां पर ना, जो है बदला मेरा है, परमेश्वर कहते हैं बदला मेरा है, परमेश्वर बदला लेता है, पलटा लेना और बदला लेना। Did I lose a brother? Okay. So I mentioned at one point that the songs in our society is a reflection of how we think or how we feel. और भजन जो इस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं कि हम लोग कैसे महसूस करते हैं, कैसे फील करते हैं। Now, another way that our society oftentimes communicate how we think and how we feel is through cinema or movies that
people produce and showcase. Pardon me, uncle. Another way our society communicate how people think, how society think is Yes. through the movies or cinema. यस अंकल. सो जो है एक और चीज मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि आजकल का जो समाज है उन लोग का सोच और विचार कैसा है. उन सोच और विचार को लोग क्या करते हैं ना मूवी के जरिए बस सिनेमा के जरिए जो है आज प्रकट किया जाता है. One of the most popular movies all over the world is a recent movie that has been there called The Avengers. और अभी वर्तमान में जो है एक ऐसे ही मूवी जो है सामने आई थी वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था. वो है अवेंजर्स बदला लेने वाला एक मूवी है. Now, I don't really watch movies. However, this is so popular and it is very, very famous, at least in the United States, and I believe all over the world. It portrays the idea of people with special powers, that will come and avenge society and provide protection. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना इस मूवी के जरिए हम लोग देख सकते हैं कि मैं वास्तव में तो मूवी नहीं देखता लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था तो मैं देखने के लिए जो है मेरा मन हुआ, मैंने देखा. तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एक तरह का जो लोग हैं, कुछ स्पेशल लोग हैं, उनके पास कुछ ऐसे सामर्थ हैं. वो सामर्थ को हम लोग यदि देखें तो जो है वो लोग क्या करते हैं ना किसी के खिलाफ आकर के किसी का पलटा ले रहे हैं और समाज का बचाव कर रहे हैं. The interesting part is after they're done avenging, the whole city is destroyed. और हम लोग क्या देख सकते हैं जब उस व्यक्ति का बदला वो लोग ले रहे हैं और जो है जैसे कि वो समाज का बचाव तो करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तब तक पूरा शहर जो है तबाह हो चुका होता है. You see, I say this because when we are accused, our natural sinful instinct is to fight back and avenge ourselves. जो है क्या होता है कि जब हमारे विरुद्ध कोई कुछ करता है हम बदला लेने के लिए जाते हैं लेकिन हम जो है हमारा सोच और विचार क्या करता है ना हमारा जो पाप की स्वभाव है वो पाप के स्वभाव के कारण जो है हम पलटा लेने का सोच और विचार हर समय हमारे मन में उत्पन्न होता है. The problem is when man chooses to avenge, we destroy everything in the process. क्या होता है जब इंसान दूसरों का बदला लेने का जब वो सोचता है उसके दरमियान क्या होती है न सब कुछ को हम लोग नष्ट कर देते हैं. And that is why God, in his instruction in Deuteronomy 32, says, "Vengeance is mine, leave the vengeance to me." और इसीलिए जो है व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय और 35वां आयत में हम लोग देखते हैं पलटा लेना और बदला लेना मेरे काम है, मेरे ऊपर छोड़ दो करके परमेश्वर कहते हैं. So when you think about it, regardless of the promise that's given in Deuteronomy, how should I respond if somebody has a false accusation against me? And और जो है to answer that question, let's look at Romans chapter 12 and verse 17 through 21. और हम लोग क्या देखते हैं कि जो है कोई यदि मेरे ऊपर कोई झूठा आरोप को लेकर के आया है तो मेरा प्रतिक्रिया कैसा होगा, मैं किस तरीके से उस व्यक्ति को प्रतिक्रिया दूं. तो उस प्रतिक्रिया के लिए आइए हम लोग रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय 17 से 21 आयत तक पढ़ लेते हैं. रोमियो 12 17 से 21. बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो. जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो. जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो. हे प्रियो, अपना पलटा लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा. परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला.
यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। See, our society will tell us to avenge ourselves, but God's word tells us, don't avenge yourselves. Leave the avenging to me. और हमारा जो है समाज है हमें क्या दिखाता है, क्या बताता है कि जो है दूसरों को बदला लेने के लिए हमें सिखाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है क्या कहता है, दूसरों का कभी भी बदला नहीं लेना। So when you look at what David did in Psalm 7, we see the fact that he first put his trust in God for his own salvation, deliverance from persecution, but secondly, that he trusted in God that he will also avenge the unrighteousness that is happening. और देखिए सबसे पहले दाऊद का प्रतिक्रिया को हम लोग देखते हैं। दाऊद इस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं कि सबसे पहले उस आरोप से, जब लोग सता रहे हैं उस सतावटी से सबसे पहले परमेश्वर के ऊपर वो भरोसा करना चाहते हैं। दूसरा, जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो भी बदला लेंगे, इस तरीके का प्रतिक्रिया देते हैं। And that is why David concludes in the last verse in Psalm 7, in verse 17, where we read, I will praise the Lord according to his righteousness, and will sing praise to the name of the Lord Most High. और इसीलिए जो है दाऊद भजन संगीता उसका 7वां अध्याय 17 पद में इस तरीके से कहते हैं, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। Now, this is easy for me and you to preach or talk about, much harder to put into practice, because there's one problematic question that I have, and that is, if I have the power to avenge myself, why should I place my trust and vengeance in the Lord's hands? और अब देखिए कि जो है ये मैं एक प्रचारक हूं और मैं प्रचार कर सकता हूं, और जो है इस तरीके का एक सोच आता है कि मैं यदि खुद दूसरों का बदला में ले सकता हूं, तो जो है बदला लेने के लिए परमेश्वर के हाथ में मैं क्यों समर्पण कर दूं। We have to keep in mind that David is king. He has an army. He is claiming to be innocent. Nobody can prove that he did anything wrong. And you have somebody in his kingdom falsely accusing him. He has all the power from an earthly perspective to go and avenge his name and avenge the false accusation. So why should David put his trust and vengeance in the Lord's hand? Why did he say what he said in Psalm 7? और हम लोग क्या देख सकते हैं, दाऊद के विषय में आप देखिए वो कौन है, वो एक राजा है, और वो राजा होने के बाद भी वो इस तरीके से कहते हैं कि मैं निर्दोष हूं। जब झूठा आरोप उनको लगाया जाता है, वो चाहते तो उनके पास वो सामर्थ है, वो शक्ति है, उनके पास सेना है, वो जा करके खुद जो है वो बदला ले सकते हैं, वो जा करके जो है लोगों को जो है लोगों का बदला ले सकते हैं। लेकिन जो है वो राजा और सामर्थ्य होने के बावजूद भी वो क्यों परमेश्वर के ऊपर बदले के लिए भरोसा करें। Now, you and I aren't kings, and we don't have an army at our disposal to go and execute vengeance. But have you ever, when somebody falsely accused you, in the back of your mind, wish that you had all that power? और आप और मैं तो राजा नहीं है दाऊद के समान कि जो है हम पीछे जा करके बदला लें, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कोई व्यक्ति यदि आपके खिलाफ व आपके विरोध कुछ काम किया है, आपके जो है पीछे जा करके आपके मन में क्या आपका मन में ऐसा सोच आया है कि इस व्यक्ति का बदला मैं जरूर लूंगा। The question that we need to answer, even for ourselves, is why is God
the right person to take vengeance. और जो है सवाल ये है कि परमेश्वर ही सही व्यक्ति है। क्यों परमेश्वर सही व्यक्ति है और वो ही स्वयं दूसरों का पलटा व बदला लेंगे? To answer that question, let's look at Psalm 8 with the remainder of our time. और आइए जो समय बचा हुआ है वो सवाल का जवाब देते हुए भजन संहिता उसका 8वां अध्याय को हम लोग पढ़ लेते हैं। Let's take a moment and read all 9 verses of Psalm 9. हे यहोवा, हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने वैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारा गण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते हैं फिरते हैं, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। Now, one thing you'll notice from the very beginning is that the same phrase is given at the beginning and at the end of the psalm. और एक बात को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक ही एक बात जो है शुरुआती में और अंत में एक तरह का विषय जो है यहाँ पर बताई गई है। Now, the word excellent, where it says, "Oh Lord, how excellent is your name," it can also mean that his name is majestic or mighty or noble or famous or glorious. That same meaning. It says, "Oh Lord, how majestic or how glorious is your name in all the earth." और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, जो है यहाँ पर परमेश्वर का नाम को जो प्रतापमय करके यहाँ पर दर्शाया है। प्रतापमय का मतलब जो है सर्वोच्च और जो है बहुत ही प्रसिद्ध। और हम लोग देखें कि प्रतापमय व महिमामय और उसके जैसा और कोई ऐसे शांत किस्म के अच्छे व्यक्ति नहीं हो सकते, उसका मतलब प्रतापमय हो सकता है। The second claim that David claims here is that his name is actually glorious above the heavens, not just on earth, but not only in heaven, but above the heavens. It is all glorious. और हम लोग क्या देख सकते हैं, परमेश्वर की जो नाम है वो नाम इस धरती पर ही महिमामय नहीं है व प्रतापमय नहीं है, स्वर्ग के ऊपर से, स्वर्ग में ही नहीं, स्वर्ग में सीमित नहीं, स्वर्ग के ऊपर भी ये परमेश्वर का नाम जो है महिमामय प्रतापमय है। Now, notice in verse 2 what David says. This glorious God is going to silence the enemy and those who want to avenge. और हम लोग क्या देख सकते हैं, दूसरे पद में आप देखिए, जो है यही महिमामय और प्रतापमय परमेश्वर जो है उन दुश्मनों को जो है उनका मुंह को बंद करने वाले हैं और उन दुश्मनों का पलटा व उन शत्रुओं का पलटा परमेश्वर लेने वाले हैं। You and I may play politics in our society. We may do it in our home. We may do it in our churches where you go back and forth. But God, who is all glorious, will silence both groups. और हम लोग क्या देख सकते हैं, आप और मैं जो है राजतंत्र राजनैतिक खेल करके बहुत सारे ऐसे ही तनाव को उत्पन्न कर सकते हैं। परमेश्वर प्रतापमय है, परमेश्वर जो है न्यायी है, वो इन दोनों ग्रुप के लोगों को ही वो चुप करा सकते हैं। David is basically claiming in this passage that the most glorious one is the rightful person to take vengeance.
और यहाँ पर दाऊद इस बात को बताते हैं, परमेश्वर ही प्रतापमय, परमेश्वर ही महिमामय परमेश्वर है, और वही व्यक्ति ही सही व्यक्ति है जो दूसरों का पलटा ले सकते हैं। So the first point that we have to answer is that he is a rightful person to take vengeance because of God's majesty and glory. और सबसे पहले सवाल का उत्तर यही है कि परमेश्वर पलटा लेने के लिए योग्य इसीलिए है क्योंकि वो परमेश्वर महिमामय और प्रतापमय है। Now, the second reason why he's the right person to take vengeance is found in verse 2 because it reflects his power. और जो है दूसरे विषय ये है कि परमेश्वर क्यों पलटा लेने के लिए जो है सही व्यक्ति व योग्य है, क्योंकि परमेश्वर के पास वो सामर्थ है, वो सामर्थी परमेश्वर है। I found it interesting in verse 2 when it talks about the power of God or the strength of God, he actually says that it's going to come out of the mouth of babes and nursing infants. और जब जो है मुझे बहुत जो है लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पिवाओ द्वारा सामर्थ की नींव डाली है करके हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। Now, I know our brother Sabir has a baby child in his home, and I'm pretty sure he doesn't look at that baby and say, that is full of strength and power. और मैं जानता हूं कि भाई शिविर के घर पे एक छोटा सा बेबी है, वो देख करके उसको ये नहीं कह सकते कि अरे ये बेबी के पास जो है बहुत शक्ति और सामर्थ है। Now, what God is basically saying is, I am going to showcase my power in things that you, man, believe to be weak. और परमेश्वर इस बात को बताना चाहते हैं, जो तुम इंसान हो ना, तुम सोचती हो कि जो चीज दुर्बल है उसमें कोई सामर्थ नहीं, कोई बल नहीं है, उसी से ही मैं ताकत और मेरा बल को मैं दिखाऊंगा करके परमेश्वर कहते हैं। For example, let's consider 1 Corinthians chapter 1, verse 18 through 25, where God basically says the weak will defeat the mighty. It's total opposite to how the world thinks. If you don't mind reading 1 Corinthians chapter 1, verse 18 through 25. और आइए हम लोग इस पद को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, जहां पर जो है हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है कैसे दुर्बलों से जो है वो शक्तिशाली लोगों को वो हराते हैं। इस बात को हम लोग पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 18 पद से लेकर के 25वां पद तक पढ़ लेते हैं, 18 से 25। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों की नट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। Now you'll notice the fact that Paul in this passage says, look at the message of the cross. In it, God, who seemed to be weak, is actually stronger than anything man could think about.
यहाँ पर आप इस संदेश को देखिए, वो संदेश को हम लोग क्या देख सकते हैं, पौल बताते हैं कि जो क्रूस की कथा को आप लोग देखेंगे तो जो है वो क्रूस जो है इंसान के नजर में परमेश्वर बहुत छोटा पड़ गया है, कमजोर पड़ गया है, लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ को उस क्रूस के जरिए संसार के लोगों को दिखाते हैं। We as human beings, especially amongst Christians, have glorified the cross as being something special. But in reality, if you think about the cross, it was the most humiliating position for a man to be in when he dies. And it showed absolute weakness to all of society. And it was that God used show the power over sin. और हम लोग क्या देख सकते हैं प्यारो, जो है उस क्रूस के वजह से आज हम लोग महिमामय में आए हैं। लेकिन उस समय व उस जमाने के विषय को यदि देखें, कोई व्यक्ति यदि क्रूस पर मरता है, उससे बड़ा कोई जो है छोटापन, नीचपन या फिर क्रूरता हम लोग और दूसरा कोई सोच नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है, उस जो है इतना छोटा सा चीज को और ऐसे मरने की अवस्था को, उस क्रूस के विषय को लेकर के परमेश्वर ने पाप को, इतना बड़ा पाप है उसको परमेश्वर ने हराया है। In the weakness of the human cross, we can see the power of God, and we sing sometimes the power of the cross. और हम लोग क्या देख सकते हैं, जो क्रूस की उस दुर्बलता, क्रूस की वो जो कमजोरी को जो है हम लोग देखते हैं, और लेकिन जोरी में महिमा को हम लोग पाते हैं। इसीलिए उस क्रूस के विषय में बहुत बार हम लोग संगीत और गीत के So, one other thing that we find in the rightful person to take vengeance is not just God's majesty and glory, not only his power, but David actually goes back and thinks about the fact that God is the one who created all things. Pardon me, uncle, I could not hear. There was a call. I'm sorry. Oh, no problem. So, in thinking about the rightful person to take vengeance, David actually goes and considers not just the majesty and glory of God and how he demonstrates power through weakness, but he also calls out the fact that it is God who created all things. और आप देखिए कि जो है दाऊद के विषय में जो है क्या करते हैं ना, उस परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की उस प्रतापमय और परमेश्वर की उस महानता को दर्शाते हैं, सामर्थ को दर्शाते हैं, वह बताते हैं उतना नहीं, बल्कि वो इस बात को भी बताते हैं कि परमेश्वर जो है वो सृष्टि करता है। I mean, think about the question that David posed. Think about the stars, the all the majestic things in the heavens that you can look at, and think about what is man, this little puny creation that is amongst all of the glorious things that God had created. और जब हम लोग देखते हैं कि जब संसार को देखें या फिर ब्रह्मांड को, स्वर्ग को आप लोग देखें, तो जो है उस परमेश्वर की उस हस्तकला को हम लोग देखते हैं, जो है चांद तारे और जो है सब कुछ को हम लोग देखते हैं, तो मनुष्य कितना छोटा है, लेकिन इस मनुष्य के ऊपर परमेश्वर की ध्यान है। Now, David answers that question. What is man with respect to creation that God, you are mindful of him? And he gives a list of reasons why God actually is mindful of the human being. और हम लोग देखते हैं कि जो है दाऊद इस बात को कहते हैं कि मनुष्य के जो है, फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखता है, उसको जो है तो ध्यान देता है। इस बात का सवाल का जवाब देने के लिए जो है कुछ ऐसे विषय को जो है दाऊद लेकर के आते हैं। He lists out 4 different things. He says that man, God made man a little lower than the angels, but he also crowned man with glory and honor. God crowned man to be
to have dominion over all of creation. And it says that God put all of earth and all of the creation of earth under the feet and power and dominion of man. और हम लोग क्या देख सकते हैं, दाऊद जो है इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर क्यों मनुष्य को ध्यान करता है, क्यों स्मरण करता है। उसके लिए चार ऐसे जवाब को लेकर के आते हैं। वो ये है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत से थोड़ा सा कमी करके परमेश्वर ने बनाया है। दूसरा, परमेश्वर ने क्या किया है, आदर और महिमा के साथ मनुष्य को जो है उसको मुकुट पहनाया है। तीसरा, हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को सारे संसार की जो सृष्टि है उसके ऊपर अधिकारी बनाया है। और क्या कहता है, न सभी चीजों को अपने जो है कदमों में वो रख सके, उस तरीके से परमेश्वर ने जो है मनुष्य को बनाया है। Now, this was the intended purpose that God had for man in his creation. And we can see that in Genesis chapter 1 and 2. God created man as the last part of the creation, and he put all of creation underneath the dominion of Adam and Eve back in Genesis chapter 1 and 2. और जब हम लोग क्या देख सकते हैं, इन सब बातों को यदि हम लोग गौर करें तो जो है उत्पत्ति उसका पहला और दूसरा आयत को हम लोग देखते हैं। परमेश्वर ने जो है सृष्टि के आखिरी में मनुष्य को बनाया, लेकिन क्या किया है, जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया है, आखिरी में जब मनुष्य को बनाया है, तो सारी सृष्टि के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकारी ठहराया है। Now, although thus was the intended purpose, we know from the stories of Genesis chapter 3 that man lost this position. We don't really have dominion over creation. We don't really control creation. We don't really rule over creation because of our sin that we committed. और हम लोग क्या देख सकते हैं, भले ही परमेश्वर का यही इच्छा थी, परमेश्वर का यही उद्देश्य था कि सृष्टि के ऊपर मनुष्य का क्या करे, मनुष्य जो है उसके ऊपर अधिकारी हो और उसका जो है नियंत्रण हो। लेकिन क्या हुआ है, वो नियंत्रण को हम लोग जो है वो खो बैठे हैं, वो अधिकार को हम लोग खो बैठे हैं। आज सृष्टि के ऊपर मनुष्य का अधिकार व नियंत्रण नहीं है, इसीलिए कि इंसान पाप किया है। So, what happens? What do I do with this? This question about, do I have power to exercise vengeance? The answer is I don't. I don't have dominion. And the writer to the book of Hebrews asked this exact same question. He posed the exact same verses from Psalm 8, and he says that now we do not yet see all things put under man. और हम लोग क्या देख सकते हैं, क्या हम लोग जो है उस सवाल का जवाब के अनुसार यदि देखें, क्या इंसान के पास वो अधिकार है कि वो जो है दूसरों का पलटा या बदला ले सकता है? नहीं, वास्तव में नहीं। और इसी के जरिए ही इब्रानी का जो लेखक है, दूसरा अध्याय 5वां पद से 8वां पद तक, वो इस तरीके से लेकर के आकर के कहते हैं, भजन संहिता 8 को ही वो उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि अभी तक जो है इंसान व मनुष्य के ऊपर वो नियंत्रण व अधिकार नहीं है कि वो क्या करे, ना दूसरों को पलटा ले। अभी तक सब कुछ उसके पैरों के नीचे अभी तक नहीं आया है। But the answer is actually found in Jesus Christ. लेकिन वो सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह में हम पा सकते हैं। Hebrews tells us, yes, man does not see all things under his feet, but Jesus Christ lowered himself to be like man. And we see the answer that the vengeance that we want was actually placed on Jesus Christ, and he died on the cross and took on the vengeance so that we don't destroy everything in the process, but instead, God is able to demonstrate his love, his grace, and his glory.
और हम लोग क्या देख सकते हैं, इंसान के पास वो सामर्थ तो है नहीं वो दूसरों का पलटा ले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम लोग देख सकते हैं वो पलटा प्रभु यीशु मसीह वो ले सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है उस बदले के बदले जो है, उस जो है पलटा लेने के बदले वो क्रूस पर जो है वो मर गया है। मर करके वो प्रभु यीशु मसीह जो है क्या किया, ना उस पाप के ऊपर जय पाया है। वो परमेश्वर जो है मनुष्य तो नहीं ले सकता पलटा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ले सकते हैं। So when you come to Psalms 8, we see the fact that not only is God the rightful person to take vengeance because of his might and power and glory, but also because he is the creator God, but even more importantly, because of his love towards man. और हम लोग क्या देख सकते हैं, परमेश्वर जो है पलटा ले सकता है, परमेश्वर बदला ले सकता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सामर्थी है, वो जो है महिमामय है, सर्वोच्च है, सृष्टि करता है। उतना ही नहीं, लेकिन उससे बढ़ करके परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, इसीलिए भी पलटा लेने के लिए वो योग्य है। And so when we see the fact that God is even mindful of man, and the fact that we see the Lord Jesus Christ, we are reminded of Philippians chapter 2, where we read the fact that God has highly exalted Jesus Christ and gave him a name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, that has dominion to the glory of God the Father. और हम लोग क्या देख सकते हैं, क्यों परमेश्वर जो है मनुष्य के ऊपर वो ध्यान देता है, क्यों वो स्मरण करता है, उसके विषय में हम लोग देखा कि क्योंकि परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह को इस तरीके से सर्वोच्च किया है, इतनी इस तरीके से जो है परमेश्वर ऊपर उठाया है। वो जो है हरेक नाम जो है, उस हरेक नाम से बढ़ करके उसका नाम है, हरेक जो स्थान है सर्वोच्च परमेश्वर ने किया है प्रभु यीशु मसीह को। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के सामने हर घुटने टेकेगी, जो स्वर्ग में हो या फिर धरती पर, और जो है हरेक मुंह अंगीकार करेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही जो है परमेश्वर का वो संतान है। And so when you think about the fact that when I am wrongly accused, instead of wishing I could take vengeance, I should ask the question, what is man that thou art mindful of him, and look to the Lord Jesus Christ and see that he is the one that is highly exalted in the rightful place to take vengeance. और जो है हम लोग जब देखते हैं कि जो है हमारे पास सामर्थ हो या फिर बल हो, लेकिन इंसान क्यों बदला नहीं ले सकता, और परमेश्वर क्यों मनुष्य के ऊपर वो ध्यान देता है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है सही जगह पर है, और वो परमेश्वर सामर्थी है, वो प्रेमी है, वो सृष्टिकर्ता। वो इसीलिए वो क्या है, ना इंसान बदला नहीं ले सकता, लेकिन परमेश्वर वो पलटा बदला ले सकता है, वो ही वो सही व्यक्ति है। Thus, we can say along with David, O Lord our Lord, how excellent is your name in all the earth. और जो है दाऊद के साथ आप और मैं भी यही बात को कह सकते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। I apologize for taking a few extra minutes to finish this. I trust that these thoughts are encouragement to each one of us, and that we could proclaim the Lord's glory in all of the things that takes place, even false accusations against each one of us. May the Lord